Good morning, students. Today we start next chapter, central orbit. Now please open your books because pics are not clear. First definition is central force. A force whose line of action always passes through a fixed point is called a central force. सेंट्रल फोर्स क्या है? फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन जो है हमेशा किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करे उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ फोर्स। Next definition is central orbit. Central orbit is the path described by a particle moving in a plane under the action of a force which is always directed towards a fixed point in plane is called a central orbit. Central orbit क्या है? Central orbit is the path describe कौन करता है? Particle जो किसी भी plane में move कर रहे हैं under the action of force and which is always directed towards a fixed point in the plane is called the central orbit. मीन्स जब कोई भी पाथ कोई भी पार्टिकल डिस्क्राइब करता है एक प्लेन में अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स देन दैट path described by the particle is called central orbit. In the motion of a planet about the sun, the path described by planet is a central orbit. अगर हम किसी भी प्लेनेट की मोशन की बात करें सन के अबाउट तो जो उनका पाथ होगा वो क्या होगा? सेंट्रल ऑर्बिट होगा। फर्स्ट थ्योरम है अ सेंट्रल ऑर्बिट इज अ प्लेन कर्व, कि जो सेंट्रल ऑर्बिट है वो हमेशा क्या होगा? एक प्लेन कर्व होगा। तो उसके लिए देखो इसने एक फिगर ड्रॉ की है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ फोर्स। नाउ टेक इट दिस पॉइंट एज ओरिजिन. Now OX be a straight line passing through O and take it as initial line. Let P be the position of the particle which is moving in a central orbit at any time t, and let this OP denotes the radius vector r. Since the particle moves under the action of a central force and with center of force O, so only force acting on the particle is along the line OP or PO, because there is only the central force and central line of action of the central force always passes through a fixed point, say O here. So the force acting on the particle is either along OP or along PO. Hence the acceleration vector, acceleration means d2r by dt2 is parallel to OP, because acceleration is rate of change of velocity. और एक्सेलरेशन को अगर हम फोर्स की टर्म्स में देखें तो फोर्स क्या है? आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा एक्सेलरेशन में भी आपकी उसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि मास तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो मीन्स जो आपका एक्सेलरेशन होगी वो पैरेलल टू ओपी होगी. If two vectors are parallel, then their cross product is 0. Now using that result, we write it here. d2r by dt2 cross OP is equal to 0, and vector OP is denoted by r, so d2r by dt2 cross r is equal to 0. Now here we adding dr by dt cross dr by dt. आपको पता है कि दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0. ए क्रॉस ए क्या होता है? 0, क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? साइन 0. साइन 0 0 होता है। तो ये टर्म 0 है, तो इस 0 टर्म को तुम कहीं भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस टर्म को हमने यहाँ ऐड किया। किस टर्म को? dr by dt क्रॉस dr by dt टर्म को हमने यहाँ ऐड किया हुआ है। नाउ दिस इज इक्वल टू dt ऑफ dr by dt क्रॉस r। ये जो टर्म है वो हमारी क्या बन गई? dt ऑफ dr by dt क्रॉस r। आप इसको ओपन करके देख सकते हो, डिफ्रेंशिएट करके, तो ये वही टर्म आ जाएगी जो हमारी ऊपर टर्म्स लिखी हुई है, एंड दिस इज इक्वल टू 0. नाउ डेरिवेटिव ऑफ एनी टर्म इज 0, सो दैट टर्म इज अ कांस्टेंट वेक्टर। अगर डेरिवेटिव 0 है, so dr by dt cross r is a constant vector, say it is represented by h here. ठीक है? And you know scalar triple product of 0 if two vectors are same and parallel. Using that result, we get r means scalar triple product of r dr by dt and r, because two vectors are same here, so their scalar triple product is 0. अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नोटेशन आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ी हुई है, या तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हो या a डॉट b क्रॉस c भी लिख सकते हो। तो हमने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r डॉट dr by dt क्रॉस r, दिस इज इक्वल टू 0, एंड dr by dt क्रॉस r जो ये वेक्टर आया था, जो हमने कहा था ये कांस्टेंट वेक्टर है, जिसको हमने h से रिप्रेजेंट किया था, तो हमारे पास क्या आ गया? r डॉट h वेक्टर जो है वो क्या हो गया? 0. एंड इफ डॉट प्रोडक्ट इज 0 देन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वेक्टर r इज परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट वेक्टर h. Thus radius vector OP, because r represent the radius vector OP, is always perpendicular to h
और h क्या है आपका कांस्टेंट, मींस परपेंडिकुलर टू अ फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो अगर वो हमारा रेडियस वेक्टर OP जो है वो किसी भी फिक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो वो किसी प्लेन में ही लाई करेगा। तो इसका मतलब जो सेंट्रल ऑर्बिट होगा वो हम क्या होगा, हमेशा एक प्लेन कर्व होगा, क्योंकि जो OP हमारा रेडियस वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर, रेडियस वेक्टर मीन्स अलोंग जो आप पाथ डिस्क्राइब करोगे वो रेडियस वेक्टर, क्योंकि ये पॉइंट P तो आपका मूव करेगा, चेंज होता जाएगा, P चेंज होने से पहले पार्टिकल से P पर है, फिर Q पर जाएगा, फिर अनदर 8 पॉइंट पर जाएगा, तो OP OQ OR, तो ये वेक्टर ही तो आपका चेंज होता रहेगा। तो ये जो रेडियस वेक्टर है वो हमेशा हम क्या देख रहे हैं, किसी एक फिक्स्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आ रहा है। कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो वो किस में होंगे, प्लेन में होंगे ना, कोई भी फिक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब सेंट्रल ऑर्बिट जो है वो हमेशा क्या होगा, एक प्लेन कर्व रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।